دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت قسط نمبر 94 اس وقت وہ لڑکی پانی کی دھچکی لے کر وہاں آ گئی۔ اس کا حسن دیکھ کر میری آنکھیں چندھیا گئی۔ ایسا مکمل حسن میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ گلوریا بھی انتہائی خوبصورت تھی، مگر اس لڑکی کے سامنے اس کا حسن بھی مانند پڑ جاتا۔ وہ لڑکی ساری میں ملبوس تھی، ساری کیا بلکہ ساری نما ایک کپڑا تھا جس سے اس نے ساری کی طرح اپنے جسم کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ اس کے گھنے سیاہ ریشمی بال کمر سے نیچے تک تھے۔ میں ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی ہر بات سے بے نیاز گرم پانی میں دھچکی وہاں رکھ کر کٹیا سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی جیسے میں ہوش میں آ گیا۔ بوڑھے نے منگل کو میلی سی ایک چادر دی اور اس سے کپڑے اتارنے کو کہا۔ منگل نے چادر لپیٹ کر کپڑے اتار دیے۔ اس کا پاجامہ خون میں ڈوبا ہوا تھا، مگر خون اب رک چکا تھا۔ بوڑھا دوسرے کونے میں جلتی ہوئی انگیٹھی اٹھا لایا اور وہ نہ جانے کہاں سے چوڑے پھل کا ایک خنجر نکال کر انگیٹھی پر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد خنجر کا پھل آگ میں تپ کر سرخ ہو گیا۔ اس دوران میں بوڑھا گرم پانی سے منگل کے زخم کی صفائی کر چکا اور اب جھکا ہوا بہت غور سے زخم کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر اس نے منگل کے زخم پر کوئی سفوف چھڑکا تو تکلیف کی شدت سے وہ بے اختیار چیخ اٹھا۔ نہ جانے وہ کیسا سفوف تھا۔ اس کے بعد بوڑھے نے تپتا ہوا خنجر انگیٹھی سے نکالا تو منگل نے دانتوں میں اپنا رومال پکڑ لیا۔ بوڑھے نے اچانک ہی تپتے ہوئے خنجر کی نوک منگل کے جسم میں گھسا دی۔ منگل بری طرح تڑپا اور اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ دوسرے ہی لمحے بوڑھے نے جھٹکے سے گولی ران سے باہر نکال لی۔ تکلیف کی شدت سے منگل دوہرا ہو گیا۔ اس کا چہرہ پسینے میں ڈوب گیا۔ بوڑھے نے ایک مرتبہ پھر کوئی سفوف زخم پر چھڑکا۔ منگل نے طویل سانس لیا اور ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دیے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اچانک اسے سکون مل گیا ہو، اور پھر وہ بدترین پرسکون ہوتا گیا۔ بوڑھے نے چند منٹ انتظار کیا، پھر ایک ڈبے سے مرہم کی طرح کوئی چیز نکالی اور منگل کے زخم پر اس کا لیپ کر دیا۔ اس سے فارغ ہو کر بوڑھا میری طرف متوجہ ہوا۔ تم بتاؤ بالکہ تمہارے شریر پر کہاں گھاؤ ہے؟ 1 مہینہ پہلے ہی گھائل ہوا تھا، مجھے 6 گولیاں لگی تھی۔ دوسرے سب گھاؤ تو ٹھیک ہو گئے، مگر پیروں میں ابھی تکلیف ہے۔ بوڑھے یوگی نے ایک میلی سی چادر مجھے بھی دی اور بولا، اپنی پتلون اتار کر یہ چادر باندھ لو، میں دیکھتا ہوں کیسے گھاؤ ہے۔ اس چادر کا رنگ بھی کچھ سفید ہوگا، مگر اس وقت بالکل مٹیالی ہو رہی تھی اور خاصی بسیدہ تھی۔ عام حالات میں ایسی چادر کو میں ہاتھ بھی لگانا پسند نہ کرتا، مگر اس وقت مجبوری تھی۔ میں نے فرش پر بیٹھے ہی بیٹھے چادر باندھ لی۔ اسپتال میں پہلے میرے پیروں پر پلاسٹر چڑھا دیا گیا تھا، مگر بعد میں کاٹ دیا گیا تھا۔ بوڑھے نے ایک ایک کر کے میرے زخموں کا جائزہ لیا، پھر پرخیال انداز میں بولا، تمہارے گھاؤ تو بہت کاری ہیں، اب تو ان میں پیپ پڑنا بھی شروع ہو گیا ہے، مگر تم چنتا مت کرو، یہ گھاؤ 3 دن کے اندر اندر ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر اس نے گھوم کر کٹیا میں ادھر ادھر دیکھا اور بڑبڑایا، یہ کانتا کہاں چلی گئی؟ کانتا بیٹی، اس نے بلند آواز میں اسے پکارا۔ فوراً کانتا لالٹین اٹھائے کٹیا میں داخل ہوئی۔ وہ جو ہی اندر آئی مجھے ایسے لگا جیسے پوری کٹیا جگمگا اٹھی ہو۔ بیٹی ذرا مجھے وہ بڑبڑایا اٹھا کر دینا، اور اس نے ایک ڈبے کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے کٹیا کے کونے میں جو رکھا ہوا تھا ڈبہ، اس کی طرف پھر تو اشارہ کرتے ہوگا، بیٹی وہ
कांता ने कोई जवाब दिए बगैर लालटेन एक कोने में रखी और डब्बा उठा लाई। बूढ़े ने एक बोतल में से कोई महलूल निकाला और साफ सुथरा कपड़ा डुबोकर मेरे जख्म साफ करने लगा। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे जख्मों पर तेजाब छिड़क दिया गया हो। मैंने दांत पर दांत जमाकर बहुत मुश्किल से अपनी तकलीफ को ज़ब्त किया। इस कोशिश में सर्दी के बावजूद मेरा जिस्म पसीने में नहा गया था। बूढ़े ने 2-3 मिनट तक तवक्कुफ किया, फिर उसने डब्बे से एक मरहम निकाला और मेरे जख्मों पर उसका लेप कर दिया। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे जख्मों में अचानक ठंडक पड़ गई हो, जैसे किसी ने मेरा सारा वजूद और का दर्द चूस लिया हो। फिर बूढ़े ने बड़े से तांबे के गिलास में मुख्तलिफ बोतलों में से चंद कतरे निकाले और उसमें मिलाकर पानी मेरी तरफ बढ़ा दिया और बोला, इसे एक ही सांस में पी जाओ, अभी तुम्हारी सारी थकन उतर जाएगी। मैंने गिलास उसके हाथ से ले लिया और वो बदमज़ा सा कड़वा मशरूब एक ही सांस में पी गया। वो दुआनुमा मशरूब पीते हुए मुझे ऐसे लगा जैसे हैरतअंगेज़ तौर पर मेरी कोई तवानाई बहाल हो रही हो। थकन भी तेजी से उतर गई। अब मैं फिर खुद को पहले की तरह चाको चौबंद महसूस कर रहा था। तुम लोग भूखे भी होंगे। अचानक बूढ़े की आवाज़ आई, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। फिर वो लड़की से मुखातब हुआ, कांता बेटी कुछ खाने को है तो ले आ। भाजी और चटनी तो है बाबा। कांता की मुतरन्नम आवाज़ मेरे कानों में रस घोल गई। रोटियां अभी डाल देती हूँ। मैं कहना चाहता था कि वो जहमत ना करे, मगर मेरे पेट में तुम्हारे भूख के चूहे दौड़ रहे थे, इसलिए मैं खामोश रहा। मैंने मंगल की तरफ देखा। वो लंबी तान कर सो रहा था। वो बेचारा वैसे भी जख्मों से नढाल हो गया था। उसकी ज़हनी कशीदगी और पैदल चलने की थकन अलग थी। थोड़ी देर बाद कांता एक थाली में छोटी छोटी कुछ टिक्कियाँ, आलू की भुजिया और लहसुन की चटनी ले आई। मेरे ज़हन में बेशुमार सवालात कलबला रहे थे कि आखिर ये बूढ़ा कौन है और इस जंगल में क्यों पड़ा है। मैं इससे कुछ पूछना चाहता था कि बूढ़े ने कहा, पहले भोजन कर लो, बाकी बातें बाद में करेंगे। ऐसे लग रहा था जैसे बूढ़ा मेरे ख्यालात पढ़ रहा हो। मैं खामोशी से खाने में मसरूफ़ हो गया। या तो वो खाना वाकई बहुत लजीज था या फिर मुझे भूख बहुत लग रही थी। वजह कुछ भी रही हो, मैंने चंद मिनट में सब कुछ चट कर दिया। पेट भरा तो शिद्दत से चाय और सिगरेट की ख्वाहिश हुई, मगर वहाँ ये चीज़ें कहाँ। मैं खुशक घास के बिस्तर पर आंखें मूंद कर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। फिर न जाने किस वक्त मुझे नींद आ गई। मेरी आंख खुली तो कुटिया में मिलगजा जैसा उजाला था। मैंने घूमकर मंगल की तरफ देखा। वो दीवार से टेक लगाए कुछ खाने में मसरूफ था। इस वक्त कुटिया में न कांता थी न वो पुरसरार बूढ़ा। तुम तो खूब सोए, मंगल ने हंस कर कहा। जानते हो इस वक्त क्या वजह है? मैंने नफी में सर हिलाया तो बोला, इस वक्त शाम के 5:30 बज रहे हैं। यार सारी रात भाग दौड़ और ज़हनी अजाब में गुजरी थी। इतना सोना तो मेरा हक था। फिर मैंने हंसकर पूछा, तुम्हारे जख्म का क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, घाव भरने में कुछ दिन लग जाएगी। तुम्हारी तकलीफ कैसी है? सुना है बाबा ने तुम्हें कोई दुआ भी पिलाई थी। हाँ पिलाई तो थी, मैंने जवाब दिया। दुआ तो उन्होंने तुम्हें भी पिलाई थी। कांता कह रही थी कि जो दुआ बाबा ने तुम्हें पिलाई है वो उन्होंने बरसों की मेहनत के बाद तैयार की है। मगर यार इस दुआ में ऐसी क्या खास बात है? मैंने हैरत से पूछा। उसका अंदाज़ा भी तुम्हें हो जाएगा। मेरे पैरों में अब रत्ती बराबर की तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। मैंने आजमाइश की खातर अपने कदमों पर खड़ा होने की कोशिश की ही थी कि बूढ़ा कमरे में दाखिल हुआ और बोला, इतनी जल्दी मत करो, कम से कम 3 दिन तक आराम करो। मैं दोबारा घास फूस के बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद कांता भी कुटिया में आ गई। उसके बाल गीले थे और उनसे पानी के कतरे मोतियों की तरह टपक रहे थे। वो रात के मुकाबले में ज़्यादा निखरी निखरी दिखाई दे रही थी। उसने एक नज़र मुझ पर डाली। उससे नज़र चार होते ही मुझे अजीब सा एहसास हुआ। वो भी बेसाख्ता मुस्कुराने लगी, फिर गर्दन झटक कर कुटिया से बाहर निकल गई। मैंने अब गौर किया तो मालूम हुआ कि इस कुटिया के 2 हिस्से थे। एक हिस्सा वो था जिसमें हम लोग थे, दूसरा हिस्सा पीछे की जानब था।
बीच में घास फूस और सरकंडों की दीवार थी। दूसरे हिस्से में जाने के लिए कोने में छोटा सा रास्ता था। थोड़ी देर बाद कांता हमारे लिए थालियों में खाना ले आई। आज भी खाने में साग की भुजिया, रोटी, चटनी थी। मैंने और मंगल ने खाना खूब मज़े ले लेकर खाया। खाने के बाद मंगल ने अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला तो मुझे खुशगवार हैरत हुई। बाज़ औक़ात छोटी छोटी बातों से हमें इतनी खुशी होती है कि बयान नहीं किया जा सकता। हैरत तो मुझे इस बात की थी कि अगर इसके पास सिगरेट थी तो अब तक उसने पी क्यों नहीं। इसने सिगरेट का पैकेट मेरी तरफ बढ़ाया तो मैंने ये बात उससे पूछ ली। वो मुस्कुरा कर बोला, यार मेरे पास बस यही सिगरेट है। खाने के बाद सिगरेट की ज़्यादा तलब होती है, इसलिए मैंने सोचा कि हम खाने के बाद एक एक सिगरेट पिएंगे, मगर फिर भी सिगरेट तो ख़त्म हो जाएंगे। हम यहाँ 2-4 बरस नहीं रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन बाद यहाँ से चले जाएंगे। यार मुझे एक बात बताओ, मैंने सिगरेट का कश लेते हुए कहा। ये बूढ़ा आखिर है कौन और तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है? वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा, मंगल हंस कर बोला। मैं भी खामोश हो गया। मैंने फैसला कर लिया कि ये सवाल बराह रास्त इस बूढ़े या इसकी बेटी कांता से करूँगा। थोड़ी देर बाद बूढ़ा कुटिया में दाखिल हुआ। उसने रात की तरह इस वक्त भी तांबे के लंबे से बदवज़ा गिलास में वही मशरूब तैयार किया और मुझे दे दिया। मैंने इनकार करना चाहा, मगर बूढ़े का खलूस देखकर हिम्मत न पड़ी और मैं वो बदमज़ा मशरूब एक ही सांस में चढ़ा गया। वह मशरूब पीकर मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी ताकत में कई गुना इजाफा हो गया हो। और इस मशरूब में ख़ास बात यह थी कि इसे पीने के थोड़ी देर बाद नींद के झोंके आने लगते थे। कल रात भी यही हुआ था। खाना खाते ही मैं बेसुध हो गया। आज भी उसे पीते ही मैं गहरी नींद सो गया था। मेरी आंख खुली तो कुटिया में तारीकी थी, मगर चिड़ियों की चहचहाहट ने अंदाज़ा हो रहा था कि सुबह हो चुकी है। मंगल गहरी नींद सो रहा था। हम दोनों के अलावा इस वक्त कुटिया में कोई और मौजूद नहीं था। शायद कांता और बूढ़ा कुटिया के दूसरे हिस्से में होंगे। मैं थोड़ी देर यूं ही खाली ज़हन के आलम में पड़ा रहा, फिर लेटे ही लेटे मुख्तलिफ वर्जिशें करने लगा। मैंने तेज़ी से हवा में पाँव चलाए तो ये जानकर मुझे खुशी हुई कि मेरे पाँव में अब बिल्कुल तकलीफ़ नहीं थी। मैंने सोचा उठकर खड़ा हो जाऊं, मगर मुझे बूढ़े की हदायत याद आ गई। मुझे कम अज़ कम 3 दिन तक आराम करना था। आज तो दूसरा दिन ही शुरू हुआ था।